Uh, Assalamu alaikum, everybody. How's second year doing? I hope you're safe and everybody around you is also safe. And keep being careful. Remember the safe practices for you and everybody else around you. The scare is real now. So uh, basically, we'll be talking about. We discussed the topic of burns previously, and in the actual design, what we had planned was to give you some interactive and clinical demonstration, interacting with you, calculating the burns and how to assess the patient clinically. But unfortunately, because of the change scenario, we had to adopt. So basically, we'll touch the salient features of the burns again, and some of the things which we left behind, we may also go and have a look at them in a more detailed manner. So, burns. If you remember what burns is, burns. So, what we will be discussing again, the introduction, what burns is, how to diagnose it according to the surface area involved and the depth. What is the pathophysiology, the clinical stages, like I mentioned, and how to manage. So, coming to the introduction, what is burns? You see here in the second pointer, coagulative necrosis. You have to remember this word when you are defining burns, because all the exogenous agents that cause injury in the form of coagulative necrosis of the skin and underlying tissue result in burns. So burns is basically coagulative necrosis of tissue. Coagulative necrosis जहाँ भी होगा उसको burn कहेंगे. It can be because of many reasons, not only the fire. Uh, it can be from direct fire with hot liquids, hot gases, hot surfaces, uh, chemicals like strong alkalis, strong acids, electricity, radiation, and even sunburns. So all these agents, they cause macroscopic coagulative necrosis of the skin and underlying tissue, resulting in burns. And burns are one of the injuries which are encountered very frequently in accident and emergency. And as a doctor, you come across the patients seeking advice regarding burns, because majority of burns, fortunately, are of limited severity and extent and can be cared for at outpatient setting, or even for minor ones can be managed at home if you can get good advice. But that you can only do if you have a knowledge of the pathophysiology, how to assess the burn and how to manage it, basically. So uh, out of 6 million people who get burnt in China every year, only 10% are admitted in the hospital. So you can imagine the high content of injuries, starting from trivial burns to large burns. And 2 million people are burned in the United States each year, and 50,000 of them get hospitalized. So you can imagine it's a big number. और घर में भी if you know कि आपके काम करने वाला घर में you yourself कोई स्त्री से थोड़ा बहुत burn हो जाता है, कोई hot water हो जाता है, somebody spills tea. So it's a quite frequent encounter you have as a doctor. So it is imperative that you know something about it right from the beginning. And I wish it was a more interactive kind of a thing as I actually planned. We could have demonstrated it and done it in a more interactive manner to learn better about, to have better understanding about this phenomena. So we said that only 10% in China, and out of 2 million in America, only 50,000 in America are hospitalized. So what's the criteria that makes us hospitalize a patient, or to keep him, to manage him at home, to manage him in ICU, to manage him in the ward? What are the criteria? So we will be coming to second and third degree burns, what they are, but second and third degree burns involving more than 20% of surface area in young fit patients, or 10% in people who are less than 10 years of age or more than 50 years of age. So second और third degree burns जो कि deep burns होते हैं, उसमें अगर young fit people है तो
20% surface area burnt हो, तो that is a criteria for hospital admission. But in case of children and elderly or the people who are immunocompromised, frail, have chronic illnesses like chronic liver disease, or clotting problems, or they are on high doses of steroids, they may have to be admitted at burns of much less severity and surface area. So then there are some important areas where even if where the 10% and 20% rule does not apply for the admission criteria. These dangerous areas are the face, around the eyes, around the nose, around the mouth, in the genital area, the hands and the feet. ये areas वो हैं कि जहाँ burns हो तो you have to admit the patient because rehabilitation is a vital part. Burns का मतलब ये नहीं है कि patient जल गया, आया, आपने उसको assess कर लिया, उसका इलाज करके वापस भेज दिया. ये this is the kind of injury that happens over seconds to maximum minutes, but it leads a long consequences of ordeal and agony and misery behind it. आपका मकसद ये नहीं कि आपने ट्रीट करके भेज दिया, आपने जो हाथ जला है उसको पेशेंट को इस काबिल बनाना है कि ही मे बी एबल टू यूज द हैंड अगेन. तो एंटीबायोटिक देके फारिग हो जाना काम नहीं है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन के बाद रिहेबिलिटेशन है. रिहेबिलिटेशन का मतलब ये कि यूजुअली द पर्सन हु गेट्स बर्न्ड इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी. एक बंदा चलता हुआ जा रहा था, फैक्ट्री में काम कर रहा था, ही इज द ब्रेड विनर, ही पुट्स द ब्रेड ऑन द टेबल फॉर द होल फैमिली. तो गया है और अचानक आपको द टेलीफोन कॉल कम्स कि जी ही हैज बीन बैडली बर्न्ड एंड ही इज इन द हॉस्पिटल. तो आपने इसको दोबारा एक फंक्शनल पार्ट ऑफ द सोसाइटी भी बनाना है. तो आपका एम क्या होता है बर्न पेशेंट्स में? सबसे पहले कि उनकी एक्यूट मैनेजमेंट, लाइफ सेविंग. उसके बाद लाइफ सेविंग मैनूवर्स करने के बाद आपकी नेक्स्ट होता है कि उसकी फंक्शनल रेस्टोरेशन. फंक्शनल रेस्टोरेशन के बाद आता है उसकी एस्थेटिक्स के एस्थेटिकली इसको मोर प्लीजिंग या एज क्लोज टू नॉर्मल कैसे किया जा सकता है. ठीक है, तो दिस इज द क्राइटेरिया लैडर जिस पे आप वर्क करते हैं. और अब किसके लिए क्या बर्न इंपॉर्टेंट है उसके लिए इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल आई मे हैव गिवन टू यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि एक बंदा है, उसकी लेफ्ट लिटिल फिंगर ऑफ द हैंड के टिप पे जो नाखून की नीचे वाली जगह है वो पल्प जो है वो बर्नट हो जाता है. तो अब एक बंदा है जो काम करता है एज अ मैनेजर, उसने राइट हैंडर है, राइट हैंड से पेन पेंसिल से लिखने वाला काम है, या कोई क्लर्क है, उसके लिए मे बी शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो उस लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर का छोटा सा एरिया बर्न होना. बट इमेजिन वो एक गिटारिस्ट है, वो एक पियानो बजाने वाला है, वो एक बंदा है जो कि डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट से काम करता है, इज अ वॉच मेकर. तो ऐसे लोगों के लिए इट कैन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज. उसका ब्रेड एंड बटर विल बी लॉस्ट. So every burn has to be catered for according to the patient, his profession, the area involved and the severity of course. तो पहले जान बचानी है, फिर फंक्शन रिस्टोर करना है और फिर उसके बाद एस्थेटिकली उसको प्लीजिंग करना है. तो दरमियान में रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी और बहुत सारे स्टेजेस आते हैं. महीनों में जाके, जो मिनट के अंदर इंजरी हुई है बर्न, ये महीनों में जाके सालों से तक इवन जाके इसके ऑपरेशन होते रहते हैं. मल्टीपल ऑपरेशन रिकंस्ट्रक्शन में चाहिए होते हैं, रिहेबिलिटेशन में, फिजियोथेरेपी में. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत पड़ती है. आपको मैनी सॉर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स आपको चाहिए और पेशेंट मोटिवेशन और डेडिकेशन इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ इट एज वेल. ठीक है, और ये तो हमने सेकंड और थर्ड की. और अगर फुल थिकनेस बर्न्स ऑफ 5% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा हो तो फिर भी हम उसको एडमिट कर लेते हैं. Every electric injury should be hospitalized, including lightning. इसलिए कहते हैं कि जी आप open ground में हो and if you feel that there is a thunderstorm going on, there is a lot of lightning, lie down or uh, go inside a building. Don't stand near tall trees, under the tall trees, because all the don't stand under the poles. And if you're in the ground, you can't find any shelter. Just lie down flat on the ground. तो इलेक्ट्रिक इंजरीज को हम क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजरीज को ना हम बॉडी सरफेस एरिया से बर्न से इतना ज़्यादा यूजुअली मिसलीडिंग होता है, क्योंकि उसमें जो पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्जिट होता है ना,
उधर थोड़ा सा वूंड होता है, पॉइंट ऑफ एंट्री में तो थोड़ा सा वूंड होता है, पॉइंट ऑफ एग्जिट में फिर थोड़ा ज़्यादा बर्न वूंड होता है। लेकिन इसका असल डैमेज जो हुआ होता है वो अंदर टिश्यूज पे होता है, जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है। wherever there is a point of resistance, जहाँ जहाँ encounter होगा वहाँ वहाँ burn जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपनी हीट एनर्जी डिसिपेट करेगा। डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी वहाँ वहाँ जाके इट विल कॉज द बर्न्स। फॉर एग्जांपल स्किन को बर्न किया, टफ स्ट्रक्चर है, उसके नीचे मसल को गया, मे बी नॉट दैट मच, लेकिन मसल का जो फैशिया है विच इज अ टफ स्ट्रक्चर अगेन, उसको बर्न करेगा। ब्लड वेसल का आएगा एडवेंटिशिया, उसके बाद बोन आएगी, पेरियोस्टियम आएगा, तो इन जगह पे जाके नर्व्स को डैमेज करता है, नर्व कंडक्शन को करता है। और सबसे बड़ा इमीडिएट हॉस्पिटल क्राइटेरिया इसलिए होता है कि इट कैन द इलेक्ट्रिकल इंजरी और इलेक्ट्रिकल बर्न कैन इंटरफेयर विद योर कंडक्शन ऑफ योर कार्डियक एक्टिविटी। आपकी कार्डियक कंडक्शन को इम्पेयर कर सकता है, आपका साइनस रिदम को डिस्टर्ब कर सकता है, इरिथमियाज कर सकता है, एसिस्टली कर सकता है। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिक इंजरी में हमेशा ईसीजी मैंडेटरी हो जाती है, छोटा सा बर्न भी हो तो ईसीजी मैंडेटरी हो जाती है। तो इन बर्न्स पे आपको यू हैव टू हैव, इसीलिए डिटेल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। और इसमें अगर सिग्निफिकेंट केमिकल इंजरी हो, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और स्ट्रॉन्ग एसिड से हो, तो इसमें बाज होते हैं जिसमें आपने पानी नहीं डालना होता पेशेंट पे, आप और ज़्यादा एरिया बर्न कर देते हो। तो यू हैव टू नो द मोड ऑफ इंजरी, ठीक है ना। और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंजरी है वो है इनहेलेशनल इंजरी। इनहेलेशनल इंजरी का आपको कैसे पता चलेगा? इनहेलेशनल इंजरी से क्या होगा? आपका एयरवेज कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, आपका ट्रैकिया, लेरिंग्स, मेजर ब्रोंकियल्स, इवन एल्वियोलर लेवल पे जाके डैमेज हो सकता है। हॉट एयर इंस्पायर करने से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। आपका इवन ये एल्वियोलर डायरेक्ट डैमेज हो सकता है। आपका हॉट गैसेस की वजह से लेरेंजियल एडिमा हो सकता है, जो कि मिनट्स में आपकी एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करके इट कैन किल। तो आपने हाई सस्पेशन ऑफ थ्रेशोल्ड, आपने लो सस्पेशन ऑफ थ्रेशोल्ड रखना है आपने फॉर इनहेलेशनल इंजरी। आपको कैसे पता चलेगा इनहेलेशनल इंजरी हुई है? दो तीन चीज़ें, अगेन हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि इफ़ द इंजरी हैपेंड इन क्लोज्ड क्वार्टर्स, बंद कमरे में ज़्यादा सारी आग लगी हुई थी, बंद हॉल में थी, या पार्क में एक जगह खुली हवा में लगी हुई थी, तो जाहिर सी बात है बंद जगह में आपको हॉट गैसेज, डायरेक्ट इंजरी ना भी हो तो हॉट गैसेज इनहेल करने का ज़्यादा चांस होता है। तो मोड ऑफ इंजरी वेयर इट हैपेंड आपको क्लू देगा। फिर दूसरा होगा कि इनहेलेशनल इंजरी में होगा कि चेहरे के बाल, नाक के बाल जले हुए होंगे, देयर वाज सिंजिंग ऑफ हेयर इन द नॉस्ट्रल। अगर इफ इट्स अ गाय, बियर्ड है, मस्टाच है, तो वो जली हुई होगी, आईब्रोज, आईलैशेस जले हुए होंगे, व्हिच विल पॉइंट टुवर्ड्स इनहेलेशनल इंजरी। या राख सूट होगा नाक के अंदर और माउथ के अंदर, ब्लैक टार्ड सूट आपके होगा, या आपके होंठ, नाक के अगर बर्न्स होंगे, या वो जगह सूजी भी होगी। या इसके अलावा इफ यू एग्जामिन द पेशेंट, ही विल बी हैविंग hoarseness of voice, difficulty in breathing, there will be swelling around the lips। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने इंट्यूबेट पेशेंट को एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करने का थ्रेशोल्ड कम रखना है आपने, ताकि आप बिफोर द ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस आपका लेरिंजियल एडिमा की वजह से बंद हो जाए और आप ट्यूब ना डाल सको, आपको ट्रैकियोस्टमी और दूसरे सर्जिकल प्रोसीजर्स करने पड़े। तो आप एयरवे को पेटेंट रखने के लिए आप पहले से ही एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो इंजरीज हैं, केमिकल इंजरीज, इलेक्ट्रिकल इंजरीज, रेडिएशन इंजरीज के तो बहुत बाद तक जाके इफेक्ट्स आते रहते हैं। एंड दीज इनहेलेशनल इंजरीज, इनके लिए आपने थ्रेशोल्ड अपना बहुत कम रखना है। तो अब आपने डायग्नोज कैसे करना है? डायग्नोसिस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉज क्या है, इंजरी हुई कैसे, जैसे हमने अभी बात कर लिया, ठीक है। लोकेशन की हमने थोड़ी सी बात की थी कि 20% इन फिट पीपल एंड ओल्ड, और बच्चों में 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। डेप्थ सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न, फोर्थ डिग्री बर्न की हमने बात कर ली। और इन सबको अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है? हाउ टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ द बर्न, हाउ टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द बर्न, how to come to know about
तो लोकेशन तो आपको हिस्ट्री पे पता चल जाएगी, एग्जामिनेशन पे पता चल जाएगी, और कॉज भी आपको डिटेल्ड हिस्ट्री लेने पे पता चलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल बी doing to reach a conclusive diagnosis. We will be looking at the cause, looking at the location of the burn, the depth of the burn, and the extent of the burn. Sorry, the word is extent of the burn, not extent of the burn. Okay. Uh, there are two methods to calculate basically the extent of the burn. The widely accepted in America, in China, and the WHO's, and जो internationally widely used criteria, that is the rule of 9. It is used to calculate large surface areas in adults. This is not for the children. Okay, this is not for infants. क्योंकि उनका हेड सर्कमफ्रेंस बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट डिफरेंट होती है, उनके रिजर्व डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनमें टोटली डिफरेंट फार्मूलाज यूज होते हैं। तो फॉर एडल्ट जो है रूल ऑफ 9 सबसे ज़्यादा कॉमनली एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। इसमें ये होता है कि इसको वॉलेस रूल ऑफ 9 भी कहते हैं। विलियम वॉलेस नहीं था, किंग विलियम वॉलेस, तो ये वॉलेस रूल ऑफ 9 है। इसमें 999 के सेगमेंट्स में बॉडी को डिवाइड कर दिया गया है। आगे मैं बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आई थिंक दिस वुड बी मोर क्लियर फॉर यू। इसमें आप देखो वॉलेस रूल ऑफ 9 में क्या है। इस पिक्चर एक ही बंदे की है, फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक। अगर इफ द हेड एंड नेक इज बर्न फ्रॉम द फ्रंट इट इज 4.5%, इट इज बर्न फ्रॉम द बैक इट इज 4.5%। तो यानी अगर हेड एंड नेक पूरा आपका इन्वॉल्व है बर्न में तो इट इज 9%। रूल ऑफ 9 की बात कर रहे हैं, 9%। फ्रंट ऑफ ईच आर्म is 4.5, back of each arm is 4.5। तो यानी एक आर्म अपर आर्म जो है आपका फ्रंट एंड बैक मिला के इट इज 9। ठीक है। ये आपका जो फ्रंट ऑफ चेस्ट इज 9, बैक ऑफ चेस्ट इज 9, फ्रंट ऑफ एब्डोमेन इज 9, बैक ऑफ एब्डोमेन इज 9। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना हुआ है, लेकिन आप इसको 18 और वो छोड़ो, फ्रंट ऑफ चेस्ट और फ्रंट ऑफ एब्डोमेन जो है उसको आप रखो। फ्रंट ऑफ चेस्ट इज 9, फ्रंट ऑफ एब्डोमेन इज 9, बैक ऑफ चेस्ट इज 9, बैक ऑफ एब्डोमेन इज 9। तो ये 18% हो गया। ठीक है। इसी तरह फ्रंट ऑफ द लोअर लिम्ब इज 9, बैक ऑफ द लोअर लिम्ब इज 9। पूरा लोअर लिम्ब जो है 18% हो गया। एक अपर लिम्ब जो था वो टोटल 9 बन रही है, जो लोअर लिम्ब जो है टोटल 18 बन रहा है। ठीक है। So 18 for the lower limb, 9 for the upper limb, 9 for front of chest, 9 for back of chest, 9 for front of abdomen, 9 for back of abdomen, 9 for the head and neck, including the front and back। तो पीछे रह जाता है फिर एक क्वेश्चन जो कि पेरिनियल एरिया को डिनोट किया जाता है। ठीक है। स्मॉल बर्न एरियाज के लिए हमने कहा था ना कि लार्ज सरफेस एरियाज के लिए वॉलेस रूल ऑफ 9 होता है। तो ये जो एक और होता है रूल ऑफ पाम या रूल ऑफ फिस्ट। आप अपना मुक्का बनाओ तो ये जो मुट्ठी बनती है ना, ये एक एडल्ट में ना रफली है 1% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। तो स्मॉल एरियाज को इससे भी मेजर किया जा सकता है कि पेशेंट का जो क्लोज फिस्ट है उसका दैट इज 1% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया, विच इज कॉल्ड द रूल ऑफ पाम और द रूल ऑफ फिस्ट। ठीक है। लेकिन दिस इज लेस एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट इज वॉलेस रूल ऑफ 9 एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड is Wallace rule of 9 because it also helps us later on we will discuss in fluid calculation, the fluid which has to be given to the patient। ठीक है। Coming to the depth of the burn, हमने extent of the burn कर लिया कि extent of the burn हमने सॉरी बच्चों में आपको मैं बताना भूल गया कि बड़ों में तो हो गया ना Wallace rule of 9 और rule of palm या rule of fist। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में होते हैं ल्यूड एंड ब्राउडर्स चार्ट। ये एक चार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड सा चार्ट होता है, इसमें वैल्यूज दी गई होती हैं, ये हर पीस इमरजेंसी में लगा हुआ होता है। तो इसके हिसाब से वो बच्चे का वेट और एज और उसके हिसाब से उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से आप उसका फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं। ये सारे कैलकुलेशन की ज़रूरत इसलिए आती है कि आपने पेशेंट को फ्लूइड कैसे देना है, एक्यूटली ट्रीट कैसे करना है और क्रॉनिकली रिहेबिलिटेशन के लिए ट्रीट कैसे करना है, इसलिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो डेप्थ ऑफ द बर्न,
डेप्थ ऑफ द बर्न आप इट्स एनाटॉमी बेसिकली आपको पता होगी, सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, फिर डर्मिस होता है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है या हाइपोडर्मिस भी जिसको कहते हैं। तो डर्मिस जो होता है दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्किन, दिस इज द स्किन बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। और नीचे रेटिकुलर डर्मिस होता है, ऊपर वाला हाफ जो होता है वो पेपिलरी डर्मिस होता है। ठीक है। तो जो आपके हेयर होते हैं, हेयर की रूट्स जो होते हैं वो आपका पेपिलरी यानी डीप डर्मिस में और इवन सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी तक इन्वेट कर रहा होता है। और नीचे जस्ट बिलो द स्किन आपके वेसल्स जो होती हैं, आर्टरीज वेन्स जो होती हैं वो आर्केड्स बना रही होती हैं और दे आर रनिंग, और इधर ही आपके स्वेट ग्लैंड और दूसरे कैपिलरी नेटवर्क और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। और बालों के साथ इरेक्टेड पाइला मसल होता है जो कि वो भी इसी जोन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। दिस इज अबाउट बेसिकली द एनाटॉमी ऑफ द स्किन। ये वाली आप वही पिक्चर देखो, दिस इज बेसिकली वही पिक्चर है, उसका डिफरेंस ये बस ब्लैक मार्क्स लगे हुए हैं। सबसे जो छोटी वाला ब्लैक मार्क है वो है फर्स्ट डिग्री बर्न, दूसरा ब्लैक है सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न, तीसरा है डीप सेकंड डिग्री बर्न, और जो चौथा लंबा सारा ब्लैक मार्क है अगर उधर तक बर्न पहुंच जाए तो दैट इज थर्ड डिग्री बर्न। और सम कहते हैं कि अगर नीचे से और नीचे चले जाओ, बोन तक चले जाओ तो उसको फोर्थ डिग्री कहते हैं, लेकिन यूजली 3 डिग्री तक ही वाइडली एक्सेप्टेबल है कि इवन से आगे सबक्यूटेनियस प्लेन से आगे काम चला जाए तो दिस इज थर्ड डिग्री, जितना मर्जी डेप्थ हो जाए। ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न ये होता है कि जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, डर्मिस की लेयर्स इंटैक्ट होती हैं या इंटैक्ट होती हैं। ये जो होते हैं पेनफुल होते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन कभी कभी होती है, ज़्यादातर ये रेड एरिथीमा व्हील लाइक रिप्रेजेंटेशन के साथ होता है, एक्सक्विजिटली पेनफुल होते हैं क्योंकि नर्व एंडिंग्स इंटैक्ट है। नर्व एंडिंग इंटैक्ट होंगी तो आपको दर्द कम होगी। वेर एज अब आप थर्ड डिग्री में देखो तो नीचे तक ब्लड वेसल्स के लेवल तक जल गया हुआ है, सारे नर्व भी जल गए हैं, सारा कुछ जल गया हुआ है, तो इधर ये वाला ये पेनलेस होगा। तो फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है बिल्कुल सुपरफिशियल होता है, एपिडर्मिस तक होता है, पेनफुल होता है, बड़ा अच्छा हील कर जाता है, कोई निशान नहीं छोड़ता, इट हील्स विदाउट स्कारन। और सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न जो होता है दैट इज अप टू द सुपरफिशियल या अपर लेयर्स ऑफ द डर्मिस, एपिडर्मिस नहीं डर्मिस के ऊपर वाली लेयर तक चला जाता है। ठीक है। इसमें भी क्योंकि यूजुअली आपके हेयर अपेंडेजेस और ये जो ग्लैंड्स वगैरह इंटैक्ट होते हैं तो इसलिए बीच में आपके एपिथेलियल सेल्स वगैरह भी होते हैं, इसलिए स्किन की जनरेशन इन साइड्स वाले इन टिश्यू से हो जाती है और इसलिए ये काफ़ी अच्छा हील करते हैं, मिनिमल और नो स्कारिंग से होती है इसमें, और दे लेकिन ये भी पेनफुल ज़्यादा होते हैं और इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन अक्सर होती है। डीप सेकंड डिग्री बर्न में क्या होता है कि आपका डीपर लेयर ऑफ डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से आपका उधर जलने के बाद यूजुअली होता है कि आपके बाल आने के चांसेस कम होते हैं, जो आपके स्वेट ग्लैंड्स या स्किन अपेंडेजेस होते हैं दे आल्सो गेट डैमेज, तो दे विल ऑलवेज हील विद पेनफुल होते हैं, उससे फर्स्ट एंड सेकंड से कम होते हैं। तो इसकी जो डीप सेकंड डिग्री जो होते हैं ये हमेशा स्कारिंग के साथ हील करते हैं। ठीक है। और देर विल बी अक्सर कोई ना कोई इनको रिकन्स्ट्रक्टिव या कोई हेल्प चाहिए हो सकती है, और उनकी रिहेबिलिटेशन देर तक होती है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलपमेंट और डिफॉर्मिटी इसमें ज़्यादा होती है। और थर्ड डिग्री बर्न ऑब्वियसली ये खुद से हील नहीं करते, इनको हमेशा हमेशा कोई ना कोई यू हैव टू यूज सर्टेन मींस लाइक स्किन ग्राफ्टिंग, कोई फ्लैप्स, कोई ग्राफ्ट, या इवन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, सेकेंडरी हीलिंग टू let them heal, but they will always result in scarring. ठीक है। अगेन फर्स्ट डिग्री बर्न है वो देखो हाथ पे बर्न हुआ है, सिर्फ लाल हुआ है, only part of the epidermis is involved and it will heal early, it will heal it without scarring and there will be no functional deficit, function loss नहीं होगा। दूसरे में सेकंड डिग्री बर्न है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, थोड़ी सी स्किन इन्वॉल्व, नीचे से डर्मिस आप देख रहे हैं बचा हुआ है, ऊपर ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, कुछ डर्मिस एपिडर्मिस तक बर्न है, कुछ डर्मिस तक बर्न है ऊपर वाले, तो दे हील गुड। अगर इसकी फिजियोथेरेपी और होता रहेगा तो कोई और रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर नहीं चाहिए होगा एंड इट विल हील वेल। और अगर इसको आप अच्छी तरह मैनेज कर लें, ये वाला जो सेकंड डिग्री है, तो
कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होगी, कोई फंक्शनल डेफिसिट नहीं होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम एंड इट विल हैव सम रेजिडुअल स्कारिंग। जो ये थर्ड डिग्री बर्न है हाथ पे हुआ है, इसमें देखें पूरी स्किन इन्वॉल्व है, अंडरलाइंग टिश्यू इन्वॉल्व है। इन केस ऑफ हैंड अंडरलाइंग टिश्यू में आपके टेंडन्स भी हो सकते हैं, जलने से उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, नर्व्स भी हो सकती हैं, ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं। तो इसमें रेजिडुअल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा होगा और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द इंजरी, अगर टेंडन उड़े में तो बाद में आपको टेंडन रिकंस्ट्रक्शन चाहिए होगी, शायद आपको माइक्रोवास्कुलर सर्जरीज चाहिए हो, फ्लैप्स चाहिए हो, फ्री फ्लैप की फॉर्म में हो, ग्राफ्ट चाहिए हो, क्योंकि ये खुद से हील नहीं करेगा। और ऐसे अगर हैंड को ये मिसमैनेज हुआ, हमने ये सारी चीज़ें इग्नोर की, तो दिस हैंड मे बी लॉस्ट फॉर एवर। So this is how important the recognition of the problem and prompt and treatment and management is vital to get through such acute injuries in accident and emergency. Okay. यूजुअली जो फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं, सुपरफिशियल जो बर्न्स होते हैं, वो जो लिमिटेड टू एपिडर्मिस होते हैं, वो सन बर्न्स भी उन्हीं में आते हैं, रेड होते हैं, जिसने हमने बात की थी। जो सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं, सुपरफिशियल डर्मिस में होते हैं, वो ब्लिस्टर फॉर्मेशन करते हैं, हमने बताया। लिमिटेड टू द डर्मिस हैं, पेपिलरी डर्मिस तक होते हैं, रेटिकुलर डर्मिस तक नहीं आते नीचे। डीप रेटिकुलर डर्मिस जो है उसमें इंटैक्ट होता है, और ये ज़्यादातर जिसमें हॉट लिक्विड्स चलने से फ्लैश और फ्लेम जो थोड़ी देर के लिए एक्सपोजर होता है, या केमिकल एजेंट आप स्पिल होता है, तो ज़्यादातर उसकी वजह से होते हैं। मोड ऑफ इंजरी ये होती है। ये पिंक होते हैं, मॉटल्ड होते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है इनमें, और सराउंडिंग एरिया में फर्स्ट डिग्री बर्न्स होते हैं, सेंटर में सेकंड होते हैं। थर्ड डिग्री में क्या होता है कि सबक्यूटेनियस फैट तक जला हुआ होता है, फेशिया, मसल और बोन्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, और ये यूजुअली इसमें जो कॉज होता है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू फ्लेम होता है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हॉट ऑब्जेक्ट होता है, और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू अ केमिकल और अ स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट होता है। इवन हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन, लाइक वॉरफेयर में जो आप न्यूक्लियर रेडिएशन इस्तेमाल होते हैं, दे कॉज सकते हैं। इसमें क्या होता है, पिंक या ब्लिस्टरिंग या वो नहीं होता, द स्किन और सब कुछ, या आपको नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे टेंडन्स और बाकी चीज़ें जली भी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन स्किन जो होती है वो पेरली वाइट होती है, चार्ड होती है, ट्रांसल्यूसेंट हो गई भी होती है, और पार्चमेंट लाइक होती है, बिल्कुल लेदरी, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। उसके नीचे आपको ब्लड वेसल क्लॉटेड नज़र आ रही होती है। और जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न होते हैं, उनके जो रेड के ऊपर जो एरिया, जो एरिथमेटिस एरिया होता है, उसके ऊपर आप उसको दबाएं ना, तो पहले वो ब्लांटिंग होती है, और उसके बाद वो दोबारा वाइट होकर रेड हो जाता है। इसका मतलब है कि तो ब्लड सप्लाई जा रही है। और ये जो थर्ड डिग्री बर्न होता है, उसको आप दबाएं तो ना कोई रंग आता है ना कोई रंग जाता है, बिकॉज देयर इज नो ब्लड सप्लाई। ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, ड्राई सरफेस होती है, ब्लिस्टर्स नहीं होते हैं, और सेंसेशन इंटैक्ट होते हैं, इसलिए पेनफुल होते हैं। हीलिंग 3 से 6 दिन में खुद ही हील कर जाते हैं, बहुत अच्छा हील कर जाते हैं। सेकेंड डिग्री बर्न जो है वो होते हैं, उसमें यूजली ब्लिस्टर्स बनते हैं, सुपरफिशियल भी होते हैं, छोटे ब्लिस्टर्स भी होते हैं, बड़े ब्लिस्टर्स भी होते हैं, एंड सुपरफिशियल सेंसेशन इंटैक्ट होते हैं, इसलिए ये भी पेनफुल होते हैं, लेकिन उसकी नस्बत कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो फर्स्ट डिग्री बर्न पे हीलिंग जो होती है 10 to 21 days in superficial second degree burns, और deep second degree burns हो तो it can take 21 days to over months। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, ड्राई थ्रोम्बोसिस और सुपरफिशियल वेसल्स होती हैं, जिसना वो हम ये सारी बात कर चुके हैं कि उसको ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे मैनेज हो जाता है, कैसे ठीक हो सकता है। तो दिस इज अगेन द diagrammatic presentation of the first degree wound, burn wound, which is the coagulative necrosis of the tissue। इसमें आप देख सकते हैं कि जो epidermis है, that is only involved, the papillary dermis and the reticular deeper dermis and the subcutaneous tissue and all the underlying muscles and fascia and tendons, everything is intact। तो सिर्फ एपिडर्मिस जला हो तो जैसे फर्स्ट डिग्री वो, इसमें रेडनेस है, पेन है, बड़ा अच्छा हील हो जाता है, वो सारी हमने बातें कर ली। ये सेकंड डिग्री है, उसको ब्लिस्टर बना हुआ है, लेकिन इसके साइड पे जो है, जहाँ एरो लगा हुआ है, जो रेड 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 रिंग सा बना हुआ है, दैट इज फर्स्ट डिग्री बर्न। ठीक है। कमिंग टू द सेकंड डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न में हमने देखा है कि पेपिलरी डर्मिस, ऊपर वाला जो डर्मिस है एपिडर्मिस के बाद जो नीचे आ रहा है, वो भी जला हुआ है, लेकिन आप वो देख रहे हो बीच में से एक बाल निकल के सीधा जा रहा है ऊपर, तो
हेयर अपेंडेजेस वगैरह ज़्यादातर इंटैक्ट है, इसलिए ये हील अच्छा हो जाता है, लेकिन इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है अगेन, नर्व एंडिंग इंटैक्ट है तो ये पेनफुल भी होता है। ठीक है, ये इसकी है, बड़े ब्लिस्टर्स बने हुए हैं। इसमें दो तरह के मैनेजमेंट आते हैं, कुछ कहते हैं कि इनको फाड़ देना चाहिए, कुछ कहते हैं इनको नहीं फाड़ना चाहिए, तो वो हम आगे ट्रीटमेंट में बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, ये इनको ब्लिस्टर्स को हटाएं तो नीचे से रेड मॉटल्ड बर्न स्किन है, लेकिन आधी स्किन जली हुई स्किन नजर आ रही है, लेकिन आपको नीचे मसल या कोई बोन या कोई और सबक्यूटेनियस फैट नहीं नजर आ रहा, तो दिस इज प्रोबेबली सेकंड डिग्री बर्न। ओके, थर्ड डिग्री में आ जाओ, पूरा डर्मस, पूरा एपिडर्मिस उड़ा हुआ है, पूरा डर्मस उड़ा हुआ है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक गया हुआ है, इवन नीचे सबक्यूटेनियस प्लेन से और नीचे जाके मसल तक गया हुआ है, तो थर्ड डिग्री बर्न। इसमें क्या है, थर्ड डिग्री बर्न में देखो किसी का बाजू है, जिसमें आप देख रहे हो कि नीचे ब्लड वेसल्स भी आपको जल के उसके अंदर खून जमा हुआ नजर आ रहा है, कोगुलेशन हुई है, कोगुलेटेड नेक्रोसिस ऑफ द वेसल्स भी हुई है। फिक्स्ड मॉटलिंग ऑफ द स्किन है, कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है, कहीं से ग्रेश होगी, कहीं से कुछ और होगा, और इन इलास्टिक लेदरी ड्राई स्किन होगी, एंड दिस इज थर्ड डिग्री बर्न। दिस इज अगेन अ पिक्चर। प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली जो बर्न होते हैं दे आर ऑफ मिक्स वैरायटी। जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है ज़्यादातर ऐसे नहीं होती कि आपको एक्सक्लूसिवली फर्स्ट डिग्री बर्न मिले, पेशेंट मिले, एक्सक्लूसिवली सेकंड डिग्री मिले या एक्सक्लूसिवली थर्ड डिग्री मिले। तो जब कोई गर्म चीज़ आपके साथ इन टच आती है तो जहाँ से उसका कॉन्टैक्ट होता है सेंटर पॉइंट, वो होता है सबसे ज़्यादा पेनफुल, और वहाँ सबसे ज़्यादा डीप बर्न होने के चांस होते हैं। उसके इर्द गिर्द वाला एरिया जो होता है उधर से कम होगा, उसके और आगे चले जाओ तो कम होगा, तो इसलिए यूजुअली अब मिक्स वैरायटी ऑफ बर्न, जब डीप बर्न आपको मिलते हैं, सुपरफिशियल चलो फर्स्ट डिग्री हुआ तो थ्रू आउट फर्स्ट डिग्री हो गया है ना, उससे ज़्यादा क्या नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर बर्न आपको सेकंड थर्ड डिग्री होते हैं दे आर मिक्स्ड बर्न। जिस तरह इस पिक्चर में आप देखो, सेंटर में ग्रेश येलो लेदरी डेड शाइनी इनलास्टिक नज़र आ रहा है, द सेंट्रल जोन। तो द सेंट्रल जोन इज ये थर्ड डिग्री बर्न है। उसके बाद आपको ब्लिस्टर चीले में नज़र आ रहे हैं, डार्क रेड स्किन नज़र आ रही है, सेंटर से कम जली हुई नज़र आ रही है, दैट इज सेकंड डिग्री प्रॉबेबली। और उसके बाद उसके बिल्कुल आउटर रिंग जो है नॉर्मल स्किन के और इस बर्न एरिया के बिल्कुल जो मार्जिन बन रही है, उधर यू कैन अप्रिशिएट देयर इज फर्स्ट डिग्री बर्न। तो यूजुअली दिस इज द काइंड ऑफ पिक्चर आपको जो क्लिनिकल सिनेरियो में मिलती है। आप इस्त्री लग गई, सेंटर में जहाँ कॉन्टैक्ट हुए वहाँ सबसे ज़्यादा बर्न है, उसके साइडों पे कम बर्न है। गर्म पानी गिर गया, जहाँ वो डायरेक्ट गिरा है वहाँ ज़्यादा बर्न होगा, जितनी देर ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहा है वहाँ ज़्यादा बर्न होगा, जहाँ वो स्पिल होके बह गया या उसके जब सर्कल में जो जले हुए एरिया के दाएं बाएं जो होगा वो इट्स गोइंग टू बी व्हाट सेकंड एंड थर्ड डिग्री। इसी तरह मिक्स पिक्चर होती है। ये देखो ग्रूसम पिक्चर, दिस इज ऑफ थर्ड डिग्री बर्न। इसके अंदर आप देख रहे हो कि स्किन सबक्यूटेनियस किसी छोड़ के इवन बोन्स और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व है, तो दिस इज फोर्थ डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न तो है ही है, तो सम पीपल एडवोकेट इट एज फोर्थ डिग्री बर्न। तो होता क्या है जब बर्न होता है, आगे चलते हैं यार, व्हाट पैथोफिजियोलॉजी पे आ जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बर्न क्या है, जब अंदर आपकी क्या पैथोलॉजिक चेंजेस आ रही हैं व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू these agents which cause coagulative necrosis और burn। टेम्परेचर, जब बर्न हुआ है टेम्परेचर जिस चीज़ के साथ जब बर्न हुआ उसका टेम्परेचर क्या था, उसके साथ कॉन्टैक्ट टाइम कितना था, ठीक है, और सोर्स ऑफ हीट क्या थी, ड्राई हीट थी, वेट हीट थी, एसिड था, एल्कली था, रेडिएशन थी, हर एक डिफरेंट है। लेकिन जो भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है तो लोकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, कोगुलेशन नेक्रोसिस में कहा कि अंडरलाइन टिश्यू की होनी है, ब्लिस्टर है, एस्कार, वो आगे बताता हूँ क्या होता है। लेकिन जो टिश्यू जब बर्न होता है तो होता क्या है, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, होता ये है कि जो टिश्यू बचा हुआ होता है ना, वहाँ वेजो एक्टिव चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वेजो डायलिटेशन होती है, क्योंकि इंजरी हुई है ना, होल्ड ऑन प्लीज, इंजरी हुई है, द बॉडी विल अटेम्प्ट टू रिस्टोर द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि द बॉडी विल ट्राई टू रिस्टोर द इंटरनल एनवायरनमेंट,
क्योंकि स्किन का काम, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी मैंने आपको बताया ये है, इसका काम सिर्फ अ, एक बहुत सारे हैं। अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू एन आइडेंटिटी, आपको इसके गिविंग यू द सेलियंट योर ओन सेलियंट फीचर, इसके अलावा इसका काम है आपकी बॉडी को एक्सटर्नल सोर्सेज से प्रोटेक्ट करना, बहुत सारे प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, कंटेमिनेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, और बहुत सारे इसके स्किन के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन है। ठीक है, तो होता ये है कि जो बर्न्स की अभियत का अलाइव टिश्यू जो होता है, उधर वेजो डायलिटेशन होती है, वेजो डायलिटेशन होती है, उस कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन्स फ्रॉम द इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट इनटू द एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि बर्न वूंड जो होता है रेड होता है, मॉइस्ट होता है, एडिमेटस होता है, और सराउंडिंग एरिया सूजी भी होती है। सिस्टेमिक रिएक्शंस में हीमोडायनामिक चेंजेस आ रही होती हैं। हीमोडायनामिक चेंजेस में क्या हो रहा होता है कि जो साइटोकाइंस और ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जब ये इंजरी होती है, लाइक टीएनएफ और इंटरल्यूकिन जो रिलीज होते हैं, तो उससे क्या होता है, फर्दर टिश्यू परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, फर्दर लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड लॉस होने की वजह से क्या होता है कि इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में से एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में जा रहे हैं ना, तो उससे ये होता है कि इफेक्टिव इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है वो कम हो जाता है, हीमो कंसंट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गई, कार्डियक लोड बढ़ा। शुरू में हार्ट अपना पॉजिटिव आयनोट्रोपिक और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट देता है कि इंक्रीज पंपिंग, force of pumping and increased rate of pumping हार्ट करता है to compensate for this decrease circulating intravascular volume। लेकिन there comes a time that it can no longer compensate, तो फिर the patient goes into shock, जिसकी वजह से डिक्रीज मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। जब किडनी को कम ब्लड जाएगा तो उधर जाके आपका रीनल फेलियर एनसीओ हो सकता है। इसलिए इसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट बर्न पेशेंट्स में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जलने की वजह से भी आपका फ्लूइड लॉस हुआ, इस वजह से भी आप देख रहे हो कि आपका थर्ड स्पेस में फ्लूइड शिफ्ट हो गया, और जहाँ से जला हुआ है पेशेंट वहाँ से कॉन्स्टेंटली आपका इनसेंसिबल लॉस हो रहा है। नॉर्मली तो स्किन में ये करना था ना कि सर्दियों में आपकी हीट कंजर्व करती है, गर्मियों में हीट लॉस ज़्यादा करती है थ्रू द स्किन होता है, ताकि आपके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। तो इसमें तो कॉन्स्टेंटली फ्लूइड लॉस टू द बर्न एरिया भी हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो और चेंजेस आ रही होती हैं, हमने देखा और क्या चेंजेस आ रही होती हैं पल्मोनरी में, आपका इसी तरह अगर इनहेलेशन इंजरी तो पल्मोनरी एडिमा की वजह से ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी कम हो रही होती है, ब्लड ऑक्सीजनेशन कम हो सकती है। जीआई ट्रैक में आपको कर्लिंग अल्सर्स, स्पेशल टाइप ऑफ अल्सर होते हैं जो बर्न्स में होते हैं अंदर, आपको वो अल्सर बन सकते हैं, जीआई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंडोक्राइन चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, रीजन ऑफ शॉक, ये हमने बात कर ली कि शॉक ये होता है कि एंडोथेलियल इंजरी भी होती है, डायरेक्ट लीकेज भी होता है, सारा तो शिफ्ट फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर टू द एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट होता है, व्हिच कैन कॉज दिस शॉक। ठीक है, मैनेज कैसे करना है, दो सिनेरियोज, आपको पेशेंट हॉस्पिटल में एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में मिल रहा है एज अ डॉक्टर, या you were having a walk in the park and you came across a person who is lying there getting burned, तो क्या करना है। ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ आप हॉस्पिटल आएंगे तो आप ट्रीट करोगे, अगर आप बीइंग अ डॉक्टर एंड नोइंग हाउ टू डू द बेसिक लाइफ सपोर्ट, तो जाहिर सी बात है you will be saving the life of that patient who is not even in the hospital and you happen to come across in the park। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आर यू सेफ, इज द पेशेंट सेफ, इज द एनवायरनमेंट सेफ, आपने ये देखना है। आर यू मैंने इसलिए कहा है कि यू बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप जज्बात में पढ़ के आप आग पे छलांग लगा दोगे ना, तो यू आर नॉट अ फायर फाइटर, एंड एज अ डॉक्टर यू हैव टू सेव मैनी लाइव्स इंशाल्लाह इन योर लाइफ, बट आप फायर फाइटर नहीं हो। तो सबसे पहले आर यू सेफ, क्योंकि आप अगर खुद जल गए तो उधर तो एक बेचारा पहले जल रहा है, आप दूसरा भी बंदा जल रहा है, फायदा काम बढ़ा दिया आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द पेशेंट अवे फ्रॉम द इंजरी, द बर्न साइड, उसको सेफ्टी में लेके जाओ। सबसे पहले खुद सेफ हो, पेशेंट को सेव करो, एनवायरनमेंट को सेव करो। आपने पेशेंट को घसीट लिया, लेकिन आपने सीपीआर करना है, पेशेंट को आपने रिहेबिलिटेट बचाना है, तो साइड आगे करीब बैठ के 5 फुट दूर बैठ के तो नहीं करोगे ना, पेशेंट को सेफ्टी पे लेके जाओगे, दूर करोगे।
और अगर केमिकल इंजरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एल्कली या अल्कोहल या एल्कली या एसिड नहीं है, तो आप पेशेंट को कोपियस, अगर आपके पास आइस कोल्ड वाटर या है तो आप उसको जल्दी से उसका टेम्परेचर और बर्न प्रोसेस को रोकने के लिए आप उसको कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर से, कोल्ड वाटर से आप उसको सोक कर दोगे, नला दोगे। इवन कहते हैं कि बाथ टब के अंदर पेशेंट को बर्फ डाल के लेटा दो, ठीक है। लेकिन ये सब बर्फ में डालना लाइक इन मूवीज जो कहते हैं कब करना है कि अगर आप इंजरी के विद इन 10 मिनट्स ऑफ द इंजरी आप ये कर सको, एंड डू इट फॉर हाफ एन आवर। और तब करो कि अगर बॉडी सरफेस एरिया 25% से कम है, कोई इनहेलेशनल इंजरी नहीं है और हाइपोथर्मिया का चांस नहीं है, बिकॉज नॉट मे बी इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन सारे यूरोप में मोस्ट ऑफ द अदर एरिया, इधर भी इवन पाकिस्तान में सर्दियों में नॉर्दर्न एरियाज हाइपोथर्मिया कैन बी अ किलर इटसेल्फ। तो पेशेंट को आपने एक्सपोज किया हुआ है, स्किन का होम्योस्टेसिस नहीं हो रहा, तो इसलिए पेशेंट को आपने हाइपोथर्मिया से भी मत बचाना है। असेसमेंट ऑफ एबीसी करनी है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, हमने वही मैंने आपसे बात की थी कि आपने देखने लेरेंजियल एडिमा तो नहीं है उधर, जो सारी हमने बात की है कि साइंस ऑफ इनहेलेशन इंजरी देखना है, सरफेस एरिया देखना है, ओरल रिससिटेशन करनी है या आईवी ससिटेशन करनी है, मतलब फ्लूइड उसको पानी जो सारा लॉस हुआ हमने बात की है, तो आपको उसमें पानी पिलाना है या आपने मेजर करके ड्रिप की फॉर्म में देना है। अब इसलिए कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, मेजर इंजरीज हैं, तो फिर तो आपने ड्रिप में ही दे रहे हैं ना जब आपने हॉस्पिटल में एडमिट करने, क्योंकि आपने देखना है कि इनटेक क्या आउटपुट क्या है। बहुत ज़्यादा फ्लूइड दोगे तो बहुत कम फ्लूइड दोगे तो हमने पहले बात की थी कि पेशेंट शॉक में जा सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में जा सकता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एक्यूट हो सकता है जिसकी वजह से एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है, कार्डियक आउटपुट की वजह से मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है वर्कआउट की वजह से, और लंग में इंजरीज की वजह से आपको ऑक्सीजनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने अंडर हाइड्रेट किया तो ये हो जाएगा, ओवर हाइड्रेट किया तो लंग्स आप वेट कर दोगे, कार्डियक लोड बढ़ा दोगे, ठीक है, हीमोडाइल्यूशन हो जाएगी, उससे भी एडवर्स इफेक्ट है। कार्डियक ओवरलोड से लंग वेट होंगे और अगेन ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो यू हैव टू, तो आप क्या करोगे, जिनको आपने ज़्यादा फ्लूइड देने हैं, जो ज़्यादा पॉइंट है, उनको हमेशा कैथेटराइज करते हो, फॉलीज कैथेटर यानी यूरिनरी कैथेटर आप उनको ज़रूर लगाते हो, ताकि आप मेजर कर सको कि आपने 24 घंटे में कितना दिया फ्लूइड और 24 घंटे में कितना फ्लूइड बाहर आया है। और प्लस इनसेंसिबल लॉसेज जो आपके स्किन के थ्रू और ब्रीदिंग के थ्रू और विद योर स्टूल्स और जो पैसेज ऑफ स्टूल्स और जो हो रहे हैं वो भी आप सारा कैलकुलेट करके आप टोटल इन 24 आवर्स इनटेक और आउटपुट को आप केटर फॉर और मैनेज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट को करना होगा तो आप ट्रांसपोर्ट करोगे ना, तो आपने जब पेशेंट को बाहर वो आग से दूर कर लिया सारा कुछ, तो सबसे पहले आप ये करोगे उसको सीपीआर करने से पहले आप करोगे कि आप किसी को शाउट करके कहोगे कि कॉल फॉर हेल्प, और आप टाइम नोट कर दोगे कि इतने बजे मैंने उसका सीपीआर शुरू कर दिया है, ताकि इसकी आगे लीगल इम्प्लीकेशन भी होती हैं, और आप बता देते हो, अगर आप खुद टेलीफोन कर रहे हो तो आप बताते हो कि मैं फलाना फलाना, क्लियरली आप बताते हो इमरजेंसी सर्विसेज को कि आई एम सो एंड सो, मैं फलानी जगह पे हूँ, एक इतना एडल्ट मेल या चाइल्ड या फीमेल या एल्डरली, इस तरह मोड ऑफ इंजरी बतानी है कि मुझे आग में या इस तरह वो पड़ा हुआ पाया गया है, इतना अनकॉन्शियस है, ही नीड हॉस्पिटलाइजेशन फॉरन हेल्प भेजी जाए, और मैं फलानी फलानी जगह पे मौजूद हूँ। आपने अपने आप को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, आपने क्लियरली आइडेंटिफाई लोकेशन करनी है जहाँ यू वांट द इमरजेंसी सर्विसेज टू अराइव, और फिर आप उनको बता देते ये टाइम हुआ है और अब मैं पेशेंट का सीपीआर शुरू करने लगा हूँ, और जाके आप सीपीआर शुरू कर देते हो और फिर वो हेल्प आती रहती है, ठीक है। अब पेशेंट इमरजेंसी एम्बुलेंस आ गई, पेशेंट को डाला उसने, तब तक आपका सीपीआर करते रहे, हॉस्पिटल में आ गया, तो आपने बर्न को ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। एक तो टॉपिकल बर्न को ट्रीटमेंट करना और एक सिस्टमिक हमने करना है। हर बर्न पेशेंट को आपने ट्रीट करना है एज रोड साइड इंजरी, और इसमें आपने टेटनस इम्यूनाइजेशन करनी ही करनी है, टेटनस का टीका लगाना ही लगाना है। एंटीबायोटिक्स इसलिए आपने देनी है कि आपका जो बैरियर विद द एक्सटर्नल एजेंट्स है वो आपका लॉस हो गया, स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं रहा, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, यूजुअली थर्ड से डे पे जाके इन्फेक्शन शुरू होता है इन बर्न पेशेंट। तो आपने प्री एम्प्ट करके आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी शुरू कर देती है, क्योंकि इसमें एरोबिक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होने के चांस होते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शुरू करा देते हैं। और
इंट्रावीनस फ्लूइड देना शुरू कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने कितना फ्लूइड देना है उस सारी चेक करके लिए। लेकिन पेशेंट की खेम आ रहा है, तो इमरजेंसी में आप वो कैलकुलेशन तो कर रहे हो, लेकिन तब तक पेशेंट को आपने पेन फ्री नहीं करना, इज ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। तो सबसे पहले ऑक्सीजन लगाई, सारा कुछ किया और पेन रिलीव करो। इसमें पेन बहुत ज़्यादा सिवियर होती है, क्योंकि वही बताया कि आपको तो यूजुअली सेंटर ऑफ द बर्न में तो 3rd डिग्री हो सकता है, साइडों पे तो 1st डिग्री 2nd डिग्री 1st डिग्री बर्न है, तो एक्सट्रीमली पेनफुल ओवरऑल जो बर्न होते हैं। और इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जीजिया देना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर देने पड़ते हैं, और यूजुअली मॉर्फिन एंड मॉर्फिन बेस देते हैं, विच इज़ क्लास 1 ड्रग, जिसकी सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है, या मॉर्फिन या इसके डेरिवेटिव्स देते हैं। उसका एक फ़ायदा होता है कि पोटेंट पेन किलर, और दूसरे के पल्मोनरी एडीमा में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो पेन नहीं होगी तो आपका टैकिकार्डिया वर्सन नहीं होगा, स्ट्रेस मीडिएटर्स और आपके और एड्रेनलिन और ये सारे कम बॉडी रिलीज करेगी, तो आपका स्ट्रेस में से बॉडी निकलने के जल्दी चांसेस होंगे। ठीक है, चेस्ट इंक्यूबेशन कब करनी है, मैंने आपको बताया था कि मुंह के रास्ते आपने ट्यूब डाल दी ट्रैकिया के अंदर, ताकि आपकी एयरवे पेटेंट रह सके। वो कब करनी है, जब पेशेंट की आवाज़ चेंज हो, हस्की वॉइस हुई हो, वीजिंग लेबर्ड ब्रीदिंग वो कर रहा हो, एक्सेसिव कफ आ रही है उसको, उसका ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो रहा है, यानी इसका ये शो कर रहा है कि उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है, ब्रेन को ऑक्सीजन कम जा रही है। दूसरा, कार्बोनेशियस स्पूटम आ रहा हो काले कलर का, बीच में जली जली राख के साथ स्पूटम के आ रही हो, या मुंह के अंदर भी इतना जली हुई राख हो, नाक के अंदर जली हुई राख हो, या नाक के बाल, चेहरे के बाल जले हुए हो। ठीक है, और होंठ का ओरोफेरिंजियल एडिमा आपको नजर आ रहा हो, नाक बाहर से जला हुआ हो, होंठ सूजे में हो, जबान जली हुई हो, ऑब्वियसली दीज आर द कंडीशन जहाँ आपने पेशेंट को एंडोट्रैकियल ट्यूब डालने में ज़्यादा देर या ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि लंग ठीक है, ब्रीदिंग रुकी, मिनट की गेम है, ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं लेता, विद इन मिनट्स यू आर गॉन, द पेशेंट इज गॉन। तो इसको आपने थ्रेश होल्ड फॉर इंट्यूबेशन आपने बहुत लो रखना है, ज़रा सा भी आपने सस्पेशन हो तो आपने पेशेंट को इंट्यूबेट कर देना है। और एज्यूम इनहेलेशनल पेन इंजरी आपने इन एवरी पेशेंट, वही मैंने आपको बताया जिसके क्लोज क्वार्टर्स में कन्फाइंड एनवायरनमेंट के अंदर बर्न हुए थे, ज़्यादा देर के लिए वो बन जाएगा मेरा। एक्सेसिव बर्न्स ऑफ फेस एंड नेक हैं, जिसकी आइस बोलन है या शर्ट है जलने की वजह से, या 50% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा बर्न है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली फिर गर्म हवा तो उसमें सांस तो लिया ही होगा ना। इंट्रावीनस फ्लूइड देते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, बार बार बात कर रहे थे, तो कौन सा फ्लूइड देते हैं, कितना फ्लूइड देते हैं, और क्या प्रिंसिपल क्या है जो इन्फ्यूजन का होता है। यूजुअली हम क्रिस्टलॉइड देते हैं, कोलॉइड रिजर्व करते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीवियरली ब्लड की कमी हो, या हमें इमरजेंसी में प्लाज्मा एक्सपेंडर चाहिए तो लग देते हैं, तब कोलॉइड देते हैं, वरना यूजुअली क्रिस्टलॉइड यानी 9.9% नॉर्मल सलाइन या रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन देते हैं, या सोडियम बाइकार्ब देते हैं साथ, लेकिन वो देखने के लिए देख के ऐसे आर्टिफिशियल ब्लड गैसेज देखने के बाद। लेकिन आप नॉर्मली नॉर्मल सलाइन 0.9% नॉर्मल सलाइन या रिंगर्स लैक्टेट देते हैं, सोल्यूशन देते हैं, हार्टमैन सोल्यूशन जिसको कहते हैं। कितना देते हैं इसका एक फॉर्मूला है, वो हम आगे जाके बात करते हैं। ठीक है, फ्लूइड रिससिटेशन, फ्लूइड जो देना है ना, पहले 24 घंटे के अलग कैलकुलेट करना होता है, और वो 24 घंटे का जो कैलकुलेट करना होता है ना, दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजरी, फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजरी आप देते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है, इसका नाम है पार्कलैंड्स फार्मूला। इसमें रिंगर्स लैक्टेट देते हैं, 4 cc रिंगर्स लैक्टेट, मतलब 4, फार्मूला ये है कि 4 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ बर्न, जो कि वॉलेस रूल ऑफ 9 से आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द पेशेंट्स वेट इन केजी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया बर्न मल्टीप्लाई बाय कितने केजी का बंदा है, सिंपल फार्मूला। तो 4% ऑफ बर्न, और ये करके फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 4 लीटर आपने देना है पेशेंट को, ये है पहले 24 आवर्स का फार्मूला। ठीक है, अब आपके पास आ गया 4 लीटर आ गया कि आपने जी 24 आवर्स में देना है, कैसे देना है। इन 4 लीटर में से 2 लीटर जो है, यानी हाफ ऑफ दिस फ्लूइड इज गिवन इन द फर्स्ट 8 आवर्स, और 24 आवर्स पूरा करने के लिए बाकी रेस्ट ऑफ द हाफ इज गिवन इन द नेक्स्ट 16 आवर्स।
ठीक है, पहले 8 घंटे में आधा दे देना है, बाकी पूरा बाकी के पूरे 24 घंटे में आपने बाकी का आधा देना। ठीक है, 16 आवर्स में देना है बाकी के। और आपका सबसे अच्छा क्राइटेरिया क्या है कैलकुलेट करने का कि आप सही फ्लूइड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? यूरिनरी आउटपुट इज द सिंगल मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया टू मेजर कि आप एडिक्वेसी ऑफ योर रिहाइड्रेशन फॉर द पेशेंट। उसमें यह है कि मिनिमम यूरिनरी आउटपुट शुड बी 0.5 ml या cc पर kg पर आवर। ठीक है, 70 kg मैन है तो उसकी 30 से ऊपर होना चाहिए, 35 से ml से ज़्यादा होनी चाहिए पर आवर यूरिनरी आउटपुट। इसलिए आप कैथेटराइज करते हैं यूरिनरी आउटपुट को मेजर करने के लिए। इसके अलावा सर्टन लेस रिलायबल क्राइटेरियाज है और ज़्यादा सब्जेक्टिव है। वो है कि पेशेंट की स्किन कोल्ड होगी, क्लैमी होगी, आई संकन होंगी, लिप्स ड्राई होंगे, टंग ड्राई और फर्ड होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, देयर विल बी फीबल पल्स। और स्किन पिंच टेस्ट करोगे, आपकी स्किन को हाथ के बैक साइड पे पिंच करोगे तो वो उधर खड़ी रह जाएगी, रिंकल्ड स्किन होगी। तो ऑल दीज थिंग्स विल आल्सो give you an idea towards dehydration or the hydration status of the patient. तो लेकिन aim for a urinary output of 0.5 ml per kg per hour to 1 ml per kg per hour in the burn patient. ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट एंड ऑल सर्जिकल ट्रीटमेंट्स वो हमने की थी। जब आप इन द नेक्स्ट क्लासेस सीनियर क्लासेस में आप विल डिस्कस अबाउट दीज ट्रीटमेंट्स इन मोर डिटेल। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड होप दिस ऑर्डील एंड सून। ये कोरोना वाला रौला जल्दी खत्म हो सो दैट यू कैन बी बैक इन दिस इन योर मेडिकल स्कूल एंड दोबारा पेपर देने शुरू हो जाओ। ओके, गुड लक।